thank you so much for paying attention to the word of God. खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करने का बहुत शुक्रिया। Thank you so much for sharing the word of God. खुदा के कलाम को बांटने का शुक्रिया। Those who are sharing, especially on the social media, और ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया पर इसको आगे शेयर करते हैं, बांटते हैं and benefiting from this teaching. और इस तालीम से फ़ायदा उठा रहे हैं, I bless you. मैं आपको बरकत देता हूँ। Amen. Amen. Keep serving. खिदमत को जारी रखिए। Maybe you will not have an opportunity to speak in a mic, हो सकता है आपको माइक में बोलने का तो मौका ना मिले, but support a man of God who is speaking already in the mic. लेकिन जो मर्द खुदा माइक पे बोल रहा है आप उसकी हिमायत करते रहे, उसको सपोर्ट करते रहे। I'm addressing you people online, those who are watching me, जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ, and the people those who are present in this house. और जो चर्च में मौजूद हैं आपसे भी बात कर रहा हूँ। If you have your social media accounts, अगर आपके सोशल मीडिया अकाउंट हैं spread the truth. तो सच्चाई को आगे फैलाएं। It will destroy the darkness and increase the light on this world. वो तारीकी को ख़त्म करेगी आपकी ये कोशिश और रोशनी को फैलाएगी, And you will get rewards. और आपको इसका इनाम मिलेगा, सिला मिलेगा। And I have taught you very well about this one. और मैंने इस बात पर आपको पहले ही बहुत सिखा रखा है। Amen. I ask you, I gave you an assignment. मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी, I think so you have studied on that assignment. मेरे ख्याल में उस असाइनमेंट के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। Anyone knows about that assignment? और कोई बताएगा कि वो असाइनमेंट क्या थी? What was? Yeah. What did you learn? What did you learn from this one? The appearance of Jesus. No, he appeared, I believe. During 40 days he used to appear. But what did you learn from this appearance? यीशु के ज़ाहिर होने से आपने क्या सीखा? Anyone else? कोई और? Thank you. Anybody? मावस की राह पे जब जाहिर होते हैं जीसस क्राइस्ट, तो वो कंफ्यूजन को दूर करते हैं, उस प्रेजेंस से उनकी कंफ्यूजन दूर करते हैं। I think so you could not get my question. मेरा ख्याल है कि आप मेरे सवाल को समझ नहीं पाए। I ask you people that there is a different ability in every manifestation of Jesus Christ. Jesus was not limited in one manifestation. यीशु मसीह महदूद नहीं थे जाहिर होने में, यानी एक ही तरह जाहिर होने में। He was having multiple appearances. वो मुख्तलिफ तरह से जाहिर हुए। That was my question. और यही मेरा सवाल था। After getting resurrection, यानी जब वो जिंदा हुए you are rewarded with the abilities तो आपको एबिलिटीज, काबिलियत दे दी जाती हैं that how you appear कि आप किस तरह से जाहिर हों in your glorified body. अपने उस ग्लोरीफाइड जिस्म में। And I tried you to go and find what abilities Jesus got after getting resurrected. और मैंने यही कहा था कि जी उठने के बाद यीशु के अंदर कौन सी ऐसी वो काबिलियत आई कि वो मुख्तलिफ तरह से जाहिर हुए। I think so I couldn't deliver you a best question. मेरे ख्याल में मैं आपको सवाल बेहतर तौर से पेश नहीं कर सकता। That's why your answers are not accurate. इसलिए आपके जवाब भी जो है बिल्कुल बामुताबिक नहीं है। Go and find again. जाएं दोबारा इसको ढूंढें। When you will find Jesus appearing जब आप यीशु के जाहिर होने को ढूंढते हैं बाइबल after में resurrection जी उठने के during बाद 40 days, 40 दिन में, then you find where is the difference. फिर आप देखेंगे कि फर्क कहाँ पर है। Last time he appeared आखिरी दफा जब वो जाहिर हुए and his appearance was in a different manner, तो उनकी जो वो जाहिर होना है वो मुख्तलिफ तरह का था। and now he is appearing once again, अब वो फिर जाहिर हो रहे हैं, and now his ability is different. अब उनकी काबिलियत जाहिर होने की फर्क है। That's what you need to find, यही आपको ढूंढना है। and you will get आपको जवाब मिल an जाएगा, answer एक जवाब मिलेगा that a person who will be resurrected कि जो शख्स मुर्दों में से जी उठा during the rapture रैप्चर के दौरान will have different ability
उसके अंदर भी मुख्तलिफ काबिलियत हो जाएगी appear, जाहिर होने to की, manifest जाहिर होने की in the glorified body. जलाली बदन में। You, all of you, you think that we will be spirits. आप सब सोचते हैं कि हम वहाँ पर सिर्फ रूहें होंगी, No, ऐसा नहीं है। you will have bodies. आपके जिस्म भी होंगे, It's not the matter of spirit only. सिर्फ रूह का ही मामला नहीं है। Jesus said that there is no blood. यीशु ने कहा कि कोई खून नहीं, It is the reference towards the physical one. ये जिस्म की तरफ हवाला है। And I have already taught you the blood component will be removed from your body. और मैंने आपको सिखाया कि खून का जो कंपोनेंट है, हिस्सा है, आपके जिस्म से निकाल लिया And जाए you will be limitless then. और आप जो है वो लिमिटलेस हो जाएंगे, लामहदूद हो जाएंगे। This body will be transformed into a new body, और ये जिस्म एक नए जिस्म में बदल जाएगा, a glorified one. यानी जलाली बदन में। So he is not talking about that you will miss the body component, the entire body, यीशु ये नहीं कह रहे कि आप सारा जिस्म ही अपना खो देंगे, but you will have another body. आपको एक नया जिस्म और जिस्म We मिलेगा। learned from 1 Corinthians 15th chapter हम ये सीख चुके हैं पहले कुरिन्थियों 15 बाब में that a body is buried in the mortality, कि जो जिस्म है वो लफानियत में दफन किया जाता in the mortality, है। मोर्टेलिटी in the mortality. या mortality, खत्म होने के लिए दफन किया या जाता फना की हालत में. Yes. You should improve your vocabulary. But it is resurrected in the immortality. है, लेकिन ये लफानियत में उठाया जाता है। Yeah, that's what I tried you to find. और यही मैंने कहा था कि आप ढूंढने की कोशिश करें। No, I think so. You will take another week to find the best answers. और मेरे ख्याल में बेहतर जवाब ढूंढने के लिए एक हफ्ता और आपको चाहिए होगा। Amen. Amen. You will find. और अब आपको जवाब मिल जाएगा, I gave you hints क्योंकि मैंने कुछ हिंट्स आपको दे दिए। because you will carry such abilities Jesus Christ carried after his resurrection. जैसे यीशु ने जी उठने के बाद कुछ खास काबिलियत हासिल की, आपको भी मिलेंगी। Maybe all of them, हो सकता है सारी काबिलियत जो यीशु and के maybe पास, few of them. और हो सकता है चंद आपको मिले। Jesus Christ was able to appear with the wounds, और यीशु मसीह जाहिर हुए जी उठने के बाद जख्मों के साथ भी, and another time he was not showing and displaying any wounds. और दूसरी दफा जब जाहिर हुए तो कोई जख्म नहीं दिखाए And उन्हें। he mentioned the event on the road to Emmaus. और जब वो अमोस की सड़क पर उन्होंने जिक्र किया, There is written that he disappeared. और वहां पे लिखा है कि वहां से वो चले गए, गायब हो गए, Suddenly he disappeared. कि वहां से वो गायब हो गए। So you will have, some of you will have ability to disappear. और आपके अंदर कुछ की काबिलियत होगी कि आप भी डिसअपीयर हो The जाएं। moment he was about to be exposed, जिस लम्हे वो जाहिर होने को थे, he disappeared. तो वो वहां से चले गए। So this is what I am trying to teach you, और यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ that these are the rewards कि ये सारे इनामात हैं, सिला है ये, after paying the price. कीमत अदा करने के बाद। Hello? Got it or not? Yes. Got it or not? Yes. Okay. Last night I was having a meeting with my sons and daughters. आखिरी रात मेरी एक मीटिंग हुई अपने रूहानी बेटे और बेटियों से, And suddenly I was reminded about a scripture I missed और मुझे एक हवाला याद करवाया गया जो कि मैं मिस कर रहा था, during the teaching sessions, और वो यानी सिखाने के दौरान मैं मिस कर रहा था, especially about the blood component. और ख़ास तौर पर जो खून का हिस्सा है, जुज़ है, उसके बारे में। Let's touch that revelation आज इस मुकाशफा को देखते हैं, in the book of Revelation, और ये मुकाशफा की किताब में हमें मिलेगा, chapter 6 छठे बाब में and verse 9 to 11. और 9 से 11 आयत में हमें ये मिलेगा। Somebody loud and clear, because I need to teach you some mysteries from this revelation. इस हवाले से कुछ खास चीज़ें हम सीखेंगे, Loud and clear, please. Say इसको it. पढ़ दीजिएगा। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे, और वो बड़ी आवाज से चिल्लाकर बोली। Are you listening? क्या बात सुन रहे हैं? Are you listening? Yes. Please repeat it once again, because I found some people are just finding the scripture. If you find, then say amen. Amen. Revelation 6, 9 to 11. Now focus, slow and steady, please.
It's the fifth seal opening. पांचवी मोहर खुलने के बारे में है। So please try to learn in the fifth seal what will happen. और सीखने की कोशिश कीजिएगा कि इस पांचवी मोहर के खुलने में क्या हो रहा है। Some people are saying that seal has already been opened. कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मोहर खुल चुकी है। But according to my study, लेकिन जो मैंने मुतालिया किया उसके मुताबिक this seal it will be opened after the rapture. ये मोहर जो है रैप्चर के बाद खुलेगी। I will tell you मैं अभी आपको इसकी वजाहत करता through the scripture. हूँ इस हवाले के जरिए से। Okay. तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे So there is an altar एक कुर्बानगाह नजर आ रही है in the spirit, रूहानी आलम में, in the heaven. आसमान पर। Okay. उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बाइस मारे गए थे। So in English it is written, these are the souls of the saints. लिखा हुआ है कि ये सेंट्स की रूहें हैं, मुकद्दसीन की रूहें हैं। Okay. और वो बड़ी आवाज से चिल्लाकर बोली कि ऐ मालिक, ऐ कदूस व बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा? So this scripture is saying they were beheaded. ये हवाला ये कह रहा है कि उनके सर उतारे गए, उन्हें कत्ल किया गया। Yeah, it's beheaded in English. और इंग्लिश में ये लफ्ज लिखा है, यानी उनके सर कलम किए गए। They were not just killed, उनको सिर्फ कत्ल नहीं किया गया, they were beheaded. उनके सर उतारे गए, Killing by beheading. यानी उनको मार दिया गया उनके सर काटने की वजह It's से। written in King James Version. और ये किंग जेम्स वर्जन में ये लफ्ज लिखा है। So these are the specific people और ये खास लोग हैं beheaded. जिनके सर उतारे गए हैं। Now, in this scripture we learn something more. इस हवाले में हम कुछ और भी सीखते हैं। After dying, मरने के बाद they still have their memories. उनकी यादें अभी बाकी हैं, The earthly memories. यानी जमीन की यादें उनके साथ हैं। They are rethinking, recalling the memories, the bad memories when they were beheaded. जब उनके सर उतारे गए तो उस बुरी याद को वहां पर वो याद कर रहे हैं। Brutally. उन्हें बहुत वहशियाना तौर पर मार दिया गया। Think about being in the presence of God under the altar. Right, altar is right in front of the throne. सोचिए वो खुदा की हुजूरी में और बिल्कुल मज़बा के सामने। Yeah, the throne and the altar के altar, सामने। they face each other. और वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। And the souls of the saints, और मुकद्दसीन की रूहें जो these हैं, are saints, और ये मुकद्दसीन की रूहें, not the sinners. ये गुनाहगारों की रूहें नहीं। So saints actually the persons those who will be left behind during the rapture. ये वो लोग होंगे जो रैप्चर के पीछे रह जाएंगे जमीन, And then they will face tribulation. और ये आजमाइशों मुसीबतों में से गुजरेंगे, And then they will be beheaded. और इनका सर कलम कर दिया जाएगा। Later part will describe it clearly. बाद का हिस्सा जो पढ़ेंगे वो उसकी वजाहत करेगा। Now come back to the point. अब अहम बात पर आते हैं। After dying you will be having memories. मरने के बाद आपकी याददाश्त बाकी रहेगी, The earthly memories. यानी जमीन पर जो बातें हैं वो You याद will रहेंगी। be recalling your family members. आप अपने खानदान के अरकान को याद करेंगे, And in the paradise section you will be allowed to meet up with each other. और जब आप आसमान पर होंगे तो आप एक दूसरे से मिल भी सकेंगे, In the paradise. यानी जन्नत वाले हिस्से में। In the Firdaus. यस, You will be allowed to have fellowship with the family members. आप अपने खानदान के लोगों के साथ मिल सकते हैं। In 2009 I was caught up in a paradise. 2009 में मैं भी फरदौस में उठाया गया, First time. पहली दफा, And I saw my family members over there. और मैंने वहां पर अपने खानदान के अरकान को देखा। Some of them they are still alive on this earth. उनमें से कुछ अभी जमीन पर जिंदा थे And they are sitting in this meeting as well. और इस मीटिंग में भी बैठे हुए हैं। But I was allowed to see their future. लेकिन मुझे इजाजत दी गई कि मैं उनके मुस्तकबिल को देख सकूं, And they were enjoying the fellowship with each other. और वो एक दूसरे की फेलोशिप से लुत्फानंदोज हो रहे थे। And I remember और मुझे याद है the memories were with them. कि यादें जमीन की उनके साथ थी। They were discussing the earthly life matters. वो जमीनी मामलात को वहां पर भी डिस्कस कर रहे थे That we spent this type of life there. कि जमीन पर हमने इस तरह की जिंदगी गुजारी। In detail I cannot share with you. ये सारी बात मैं आपसे वजाहत में बयान Because I नहीं कर want to सकता, stay on this topic. क्योंकि हम इस टॉपिक पर But सीखना learn चाहते हैं। from the scripture that they were recalling लेकिन इस हवाला से सीखिए कि वो याद कर रहे हैं something
कोई चीज याद कर रहे हैं that they were beheaded, कि उनका सर तन से जुदा कर दिया गया killed brutally. और उन्हें वैश्याना तौर पर मारा गया। So now they are complaining अब वो इस बात की शिकायत कर रहे हैं in the presence of God, खुदा की हजूरी में, right before the throne. बिल्कुल तख्त के सामने। Think about, इसके बारे में सोचिए, you have the fullness of God, आपके सामने खुदा की पूरी हजूरी है, but still you are complaining. लेकिन फिर भी आप शिकायत कर रहे हैं। This is the pain in the blood. ये खून के अंदर एक दर्द है, This is the limit of a blood. ये खून की एक लिमिट है। Their blood was shed on the earth, उनका खून जो है वो जमीन पर बहा दिया but गया, still the blood is giving them pain. लेकिन वो खून का बहाव अभी भी उन्हें दर्द दे रहा है। That's why this component will be separated from you in the glorified bodies. इसलिए जलाली बदन में ये जुज यानी खून अलग कर दिया जाएगा। You see, this scripture is saying that they are still waiting for the judgment day. ये हवाला कह रहा है कि अभी भी वो जजमेंट का इंतजार कर रहे हैं। So it means they were not resurrected yet. इसका मतलब है अभी वो जी नहीं उठे हैं। When they will be resurrected, जब वो जी उठेंगे the blood component will be separated from their bodies. तो खून का जुज उनके जिस्मों से अलग कर दिया But जाएगा। right now, लेकिन इस वक्त they are not resurrected अभी वो जी नहीं उठे हैं and still waiting for their resurrections. और अपने जी उठने का इंतजार कर रहे हैं, But because of the blood limitation, लेकिन खून की महदूदियत की वजह से they are calling the judgment. वो जजमेंट के लिए पुकार रहे हैं, Now, इंसाफ के लिए please कह रहे read it. हैं। Now you will understand what I was sharing. और वो बड़ी आवाज से चिल्लाकर बोली Ah. कि ऐ मालिक, ऐ कदूस व बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा My goodness. और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। Take revenge of our blood from them. हमारे खून का बदला जमीन वालों से लो, Those who killed us. जिन्होंने हमें मारा है। Please continue. और उनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया। No. In the spirit realm, in the 1,000-year even, रूहानी आलम में और 1000 साल बादशाहत में भी we will not be naked. हम नंगे नहीं होंगे, Even our spirits and souls will be carrying some clothing. यानी हमारी रूहें जो है वो भी किसी ना किसी तरह का लिबास पहनेंगी। There is a certain wardrobe available. वहां पर वार्डरोब है, अलमारी है कपड़ों की। You will be given clothing from that wardrobe. उस अलमारी से आपको कपड़े दिए जाएंगे, Not nakedness. आप बगैर कपड़ों के नहीं होंगे। Are you listening? They are spirits now, they are souls now. वो अब रूहें हैं, Still, they were given what? लेकिन फिर भी उन्हें क्या दिया The गया? white robes, कपड़े दिए गए, the white garments. सफेद कपड़े दिए गए। So I'm showing you the spirit kingdom now. मैं आपको रूह की जो बादशाहत है वो दिखा रहा हूँ। It's not just the spirit. सिर्फ रूहें ही नहीं है, Many things are there to see. बहुत सारी चीजें और भी हैं देखने की। Please continue. और उनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया Okay. और उनसे कहा गया कि और थोड़ी मुद्दत आराम करो। A little season. In English it is written a little season. थोड़ी देर के लिए। From this point, इस नुक्ता से आगे I learned मैंने सीखा that they are the people, the saints, those who were killed during the tribulation period. कि ये मुकद्दसीन जो है वो मुसीबत के वक्त में मारे गए। Because you know, after 7 years, आप जानते हैं कि 7 सालों के बाद the Antichrist will be removed. जब मुखालिफ मसीह को खत्म कर दिया जाएगा, So believe in this scripture, इस हवाले पर यकीन रखिए take it as it is, और इसको बिल्कुल जैसे लिखा है ऐसा ही समझिए that rapture has already taken place. कि रैप्चर हो चुका है The first fruit is already caught up. और पहला फल जो है वो आसमान पर उठा लिया गया। These are the Jews or the people, those who did not believe in the rapture. ये वो लोग थे जो कलीसिया के उठाए जाने पे यकीन नहीं रखते थे, या ये यहूदी थे, They were left behind. और ये जमीन पर वापस पीछे रह Then गए। they believed in the word and in Jesus Christ. फिर उन्होंने कलाम पर ईमान लाए और यीशु पर ईमान लाए, And then they went through this tribulation, और फिर वो मुसीबत में से गुजरकर defending their faith अपने ईमान का दिफा करते हुए and not denying Jesus. और यीशु का इनकार ना करते हुए, And then the Antichrist is giving them beheading punishment. और मुखालिफ मसीह उनके सर के उतारे जाने की सजा उन्हें देता है। That's why the voice saying them that wait for a little
season. इसलिए आवाज उन्हें कह रही है कि थोड़ी देर इंतजार करो। Soon I will take revenge from this Antichrist and his people. जल्द मैं इस मुखालफे मसीह से बदला लूंगा और उन लोगों से भी। Because there is a limitation for him. उसके लिए एक लिमिटेशन है, 7 years. 7 साल की। He killed you, उसने आपको मारा है, no problem. कोई मसला नहीं, Wait. इंतजार कीजिए, Little season, थोड़ी देर के लिए, not big time movements. बड़ी देर के लिए नहीं। So definitely these are not the souls of the saints, those who died in the early church. ये वो मुकद्दसीन की रूहें नहीं है जो पहले चर्च में मारी गई, इब्तदाई चर्च के वक्त मारी गई। Because then voice cannot claim that wait for little season. फिर ये आवाज नहीं कह सकती कि थोड़ी देर के लिए इंतजार करो। It is a big season if they died in the early church. अगर वो इब्तदाई कलीसिया के लोग हैं ये, तो फिर तो काफी लंबा सीजन है। So that's why I'm satisfied with my belief that they are the saints, those who will be beheaded during the Antichrist reign. इसीलिए मैं अपने इस ईमान पर बड़ा पुख्ता हूँ कि ये वो सेंट्स हैं, वो मुकद्दसीन हैं जो बाद में मारे And गए। in the later part you will read that they actually defended their faith and not accepted the seal, the 666. और बाद में आप पढ़ेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ईमान का दिफा किया और 666 की मोहर नहीं लगवाई। In the later part maybe you will find. बाद के हिस्से में कलाम के आप पढ़ सकते हैं इसको। Now I want to save time. मैं वक्त बचाना चाहता हूँ, I want to skip this quickly मैं इसको थोड़ा सा छोड़ना चाह रहा हूँ, by concluding इसको कंक्लूड करके that you will not be purely spirits. कि आप वहाँ पर बिल्कुल रूह की शक्ल में नहीं होंगे, Not purely spirits. सिर्फ रूह नहीं होंगे, Your souls आपकी रूहें are there, वहाँ पर हैं, separated from the blood desire. और ये खून की जो ख्वाहिशात हैं उससे जुदा हो गई हैं, अलग हो गई हैं। Your bodies will be there आपके जिस्म वहाँ पर होंगे, in the glorified form. लेकिन ये जलाली फॉर्म में होंगे। All of you, the 3 components, आपके तीनों जो अज्जा हैं will be there. ये वहाँ पर होंगे। Your spirit, आपकी जो रूह है, your soulish, आपकी रूह, your soulish part, आपकी जान and your body part, और आपका जो जिस्म है, but glorified. ये लेकिन तीनों जलाली होंगे। So maybe you have already thought about that we will be only spirits. आपने सिर्फ यही सोचा कि हम वहाँ पर स्पिरिट्स ही होंगी, No. ऐसा नहीं है। Take care of your bodies. अपने जिस्म का ख्याल कीजिए, Take care of your souls. अपनी रूह का भी ख्याल कीजिए। Hallelujah. Amen. Can I move forward? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? Can I? Okay, now I wanted to remove this confusion and I think so it is removed. मैं इस कंफ्यूजन को दूर करना चाह रहा हूँ, मेरे ख्याल में ये होगी है About this scripture, इस हवाला के बारे में, the blood. खून की जो बात हम कर रहे थे। Now let us connect with the previous sermon, the last Sunday message. पिछले इतवार का जो सरमन था उससे अब कनेक्ट होते हैं। We were learning about getting rewards हम सीख रहे थे कि हमें क्या इनामात मिलेंगे after the rapture. रैप्चर के बाद। It's not just the game of being caught up. सिर्फ यही नहीं कि आप आसमान पर उठाएंगे और ये काफी है, There is a 1,000-year life उसके बाद 1000 साल जिंदगी है set aside अलहदा रखी हुई for us. हमारे लिए। It's not just entering into it, सिर्फ यही नहीं कि उसमें बस दाखिल हो जाएं, but enjoying that life as well. उस जिंदगी से लुत्फानंदोज भी होना। And we have developed a foundation और हमने एक बुनियाद को आगे बढ़ाया है that कि we can enter into that kingdom with the works of the Jesus Christ, कि हम बादशाहत में यीशु के कामों की वजह से दाखिल हो सकते हैं, but we will not enjoy the kingdom with the works of Jesus Christ. लेकिन उस किंगडम को हम यीशु के कामों से एंजॉय नहीं कर सकते। We establish this truth. हमने इस सच्चाई को सीख लिया हुआ And है। if you have not listened the previous sermons, अगर आपने पिछले सरमन्स को नहीं सुना, go and read and listen. और आप जाएं और उसको YouTube पर सुन सकते हैं, You can read your notes as well. और अपने नोट से भी पढ़ सकते हैं, Then you will learn. आप सीखेंगे। Find a scripture, Mark 10:29. मरकस We were touching the scripture of a young man who was rich, हमने एक हवाला पढ़ा नौजवान के बारे में जो अमीर था, and we learned a lot about और हमने उसके बारे में बहुत कुछ सीखा, the finance, यानी रुपए पैसे के बारे this में earth, इस जमीन पर, and the transferring of money in the heaven.
और इस रुपए पैसे को आसमान पर तब्दील करने, मुंतकिल करने के बाद depositing this money into the heavenly kingdom. कि हम किस तरह आसमान की बादशाहत में रुपए पैसा जमा कर सकते Now हैं। I want you to read Mark 10:29 मरकस 10 बाब 29 आयत। slowly. यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ Okay. कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ या बाप या बच्चों या खेतों को मेरी खातिर और इंजील की खातिर छोड़ दिया और अब इस जमाना में 100 गुना ना पाए। Pause. So Jesus is saying यीशु यहाँ पर कह रहे हैं that there is a surety of reward on this earth. कि इस जमीन पर सिला मिलने की यकीनियत है। Those who are ministering in the kingdom. जो किंगडम में खिदमत कर रहे हैं। Before the church service started, इस चर्च के शुरू होने से पहले my younger son was cleaning and managing the things. मेरा छोटा बेटा जो है वो चीजों को देख रहा था, साफ कर रहा था जगह को। Jesse. जैसी की बात कर He रहा हूँ, was using the duster वो डस्टर का इस्तेमाल कर रहा था and cleaning the things. और चीजों को साफ कर रहा था। And they folded the mattress and the blankets and everything. और उन्होंने सारी चीजों को फोल्ड किया, इकट्ठा किया हुआ था। And when I was getting ready, और जब मैं तैयार हो रहा था, he came out. वो बाहर आया। He said that give me money now. तो उसने कहा कि मुझे पैसे दीजिए He काम said करने, that, my reward. मेरा इनाम दीजिए। And when I asked him, what did you learn तो जब मैंने उससे पूछा कि किया क्या या क्या सीखा है, in the previous Sundays? पिछले इतवार क्या सीखा I है, am already teaching you about the rewards. तो मैं आपको सिखा भी रहा था रिवॉर्ड के बारे So में। you are very quick to receive your तो rewards. मैंने कहा कि तुम बहुत तेज हो सीखने में, In the rewards. खास तौर पर इनाम के सिलसिले में। So I refused to give him. मैंने उसे देने से इनकार कर I दिया। said that if you will receive from me, मैंने कहा कि अगर आप मेरे से ले लोगे इनाम को, then you will not receive from the Lord Jesus तो Christ. फिर आपको यीशु से इनाम नहीं मिलेगा। So with a sad face, he returned inside the hall. वो उदास चेहरे के साथ जो है वो हॉल में वापस आ गया। I gave him a very good picture of the rewards, मैंने रिवॉर्ड की बड़ी अच्छी तस्वीर उसे पेश की, but he was not satisfied with that one. लेकिन उस तस्वीर से वो मुतमिन ना हुआ। Here Jesus is giving, he is portraying actually यहाँ यीशु भी तस्वीर कशी कर रहे हैं, the earthly rewards. यानी जमीनी इनामात की। And those who are speaking against the prosperity gospel, और वो लोग जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के खिलाफ हैं, I think so devil has blinded them from this scripture. मेरे ख्याल में इस हवाले की तरफ शैतान ने उनकी आंखों को बंद किया। Now Jesus is saying, यीशु यहाँ पर कह रहे हैं there is no one on this earth कि इस जमीन पर कोई भी नहीं है who has sacrificed his anything, जिसने अपनी कोई भी चीज कुर्बान की हो, the house, यानी घर, the money, रुपया the पैसा, job, जॉब को, the family member, खानदान का कोई रुकन, and is not rewarded और उसको सिला ना मिला हो, 100-fold. 100 गुना सिला। It's the scripture. ये कलाम में लिखा है। Okay, now come to the point. अब हम अपनी बात पर आते हैं। If Pastor Naveed has already sacrificed and is receiving reward from the Lord, पास्टर नवीद ने अगर पहले ही किसी चीज की कुर्बानी दी है और खुदा से उसको सिला ले रहा है, and it is 100-fold now. और वो अब 100 गुना हो चुका है। I sacrificed 1 rupee मैंने 1 रुपए की कुर्बानी दी in the shape of a reward. सिला की शक्ल में, 100 rupee is in my pocket now. 100 रुपया मेरी जेब में वापस आ I गया। sacrificed 100,000 rupee, मैंने 100,000 रुपया जो है उसकी कुर्बानी दी, and the 100-fold is in my pocket now. और अब 100 गुना उसका मेरी जेब में वापस है। And this is the result of the scripture. और ये इस हवाले के नतीजा में हो रहा है। And now I am rich. इस वजह से मैं अमीर हूँ। In the result of this scripture. इस हवाला के नतीजा में, कलाम के नतीजा में, Isn't it the prosperity? क्या ये खुशहाली नहीं है? Am I not deserving? क्या मैं मुस्तहिक नहीं हूँ ये हासिल करने का? Huh? Am I not? Jesus said so. यीशु ने भी ऐसा कहा That there is nobody left on this earth कि जमीन पर कोई भी नहीं छोड़ा गया who left anything for me कि जिसने मेरी खातिर कोई चीज छोड़ी हो and never rewarded 100-fold. और उसे 100 गुना बदला ना मिला। So when the scripture will come alive to me, और जब ये कलाम जो है जिंदा होकर मेरे सामने आएगा, obviously on this earth I will be a rich person. तो यकीनन इस जमीन पर ही मैं एक अमीर शख्स बन जाऊंगा। Hey, people of God, are you listening? Yes. Then another
man of God will rise up एक और मर्दे खुदा उठेगा and he will say that Pastor Naveed is looting the church. और वो कहेगा कि पादरी नवीद जो है वो चर्च को लूट रहे हैं He is hijacking the Christ money और वो यीशु के जो रुपए पैसे हैं उसको हाईजैक कर रहे हैं without knowing the scripture that this is the result of what I have already done in the kingdom. वो कलाम को जाने बगैर कि मैंने क्या क्या बादशाहत में किया उसको जाने बगैर ही So they want वो चाहते हैं ऐसे लोग this scripture इस हवाले को to be dead कि ये असरअंदाज ना हो जिंदगी में in the lives of people. लोगों की जिंदगियों में And people are very comfortable. और लोग इसी तरह ही मुतमिन हैं No problem if we are poor. कि कोई मसला नहीं अगर हम गरीब हैं तो Haven't you sacrificed? क्या आपने कोई कुर्बानी नहीं दी Haven't you given in the church? क्या चर्च में कभी नहीं दिया आपने Haven't you supported the kingdom of God and the missionary work? क्या खुदा की बादशाहत और मिशनरी वर्क को आपने सपोर्ट नहीं किया Don't you deserve any reward? The और आप hundredfold? मुस्तहिक नहीं है इसके बदले के Why are you satisfied with the poverty? आप गुर्बत के साथ इतने मुस्तहिक क्यों बनते हैं On this earth, Jesus is saying that I have hundredfold for you people. और यीशु कह रहे हैं कि जमीन पर 100 गुना आपको मिलेगा Don't forget it to get it. इसको भूलिए ना लेने से Don't leave it. इसको छोड़िए भी ना Just waiting for the rewards in the 1000 year. और सिर्फ 1000 साल बादशाहत में अपने इनाम का इंतजार ना करते रहें Catch them first. पहले इसको ले लें I want you to be prosperous. मैं चाहता हूं कि आप खुशहाल हों I want you, people must see you receiving hundredfold from me and be encouraged from you people. और मैं चाहता हूं कि आप 100 गुना जमीन पर लें और आपसे लोग बाकी हौसला अफजाई लें And you listening to those men of God, those who are supporting poverty और आप उन मर्दे खुदा को सुनते हैं जो गुर्बत को सपोर्ट करते and leaving you hundredfold. हैं और वो चाहते हैं कि आप 100 गुना ना लें Who will follow you? Who will follow your Christ? आपके खुदा की कौन पैरवी करेगा यीशु की कौन पैरवी A करेगा poor Jesus and poor follower of Jesus. कि गरीब मसीहा और गरीब ही उसके पैरवा Who will be convinced by your ministry? आपकी खिदमत से कौन कायल होगा Nobody. कोई भी नहीं होगा No one, I'm telling you. कोई भी नहीं होगा People are living on this earth better life than the Christians. इस जमीन पर बहुत सारे लोग मसीहों से बेहतर जिंदगी गुजार रहे They हैं don't know your Jesus, वो यीशु को भी नहीं जानते but still they are better than the Christians. लेकिन फिर भी वो मसीहों से बेहतर हैं That the misconception church and the leaders gave to the church. क्योंकि लीडर्स ने कलीसिया को मिसकंसेप्शन दी है But I am here to do what I am born to do. लेकिन यहाँ मैं वो करने के लिए आया हूँ जिसके लिए मुझे यीशु ने पैदा किया है I will remove this poverty gospel from the Church of Pakistan. मैं चर्च ऑफ पाकिस्तान से इस गुर्बत की गॉस्पल को निकाल दूंगा And you people will carry this gospel with you. और आप इस गॉस्पल को प्रॉस्पेरिटी को साथ You लेंगे will share this good news to people. और आप इस अच्छी खबर को दूसरों से बांटोगे People of God, poverty is not good news. गुर्बत अच्छी खबर नहीं है The prosperity is good news. खुशहाली प्रॉस्पेरिटी अच्छी The खबर है hundredfold. 100 गुना अच्छी खबर है Just go, जाइए write down, और लिख लीजिए just what have you done, even the money in this year कि इस साल में पैसों का क्या किया आपने in the kingdom of God. खुदा की बादशाहत के लिए Just calculate. आप सारे जमा कर लीजिए 10,000, 10,000 किया 20,000. 20,000 किया Then you should claim hundredfold. ताकि उसका 100 गुना का आप क्लेम कर सके दावा कर सके If it was 1,000 rupee, अगर ये 1000 रुपए है it should be converted into 100,000. तो ये 100,000 में बदलना चाहिए There should be 100 attached with that 1,000. इस 1000 के साथ 100 गुना जुड़ा होना चाहिए Go and ask Jesus, your scripture is not coming alive to me. यीशु से कहिए कि ये कलाम जो है मेरे साथ जिंदा नहीं हो रहा Where are you? Where is the spirit in this scripture? इस कलाम में कहाँ रूह है कहाँ जिंदगी Answer me. Your scripture is saying to me यानी कलाम आपका ये कह रहा है मुझे जवाब that there चाहिए is nobody left, that person who is not receiving any reward. There is nobody left on this earth इस जमीन पर कोई भी नहीं छोड़ा जाएगा या छोड़ा गया without receiving reward. कि जिसको इनाम ना मिला हो सिला ना मिला हो। Hello, people of God. Yes. Hello. Yes. You can't question my wealth आप मेरी दौलत पर सवाल नहीं उठा सकते because you were not with me when I was poor. जब मैं गरीब था तो आप मेरे साथ नहीं थे If you have ever supported me आपने कभी अगर मेरी सपोर्ट की है in my poverty, गुर्बत के वक्त में then come to me and ask me फिर आप मेरे पास आइए और मेरे से आप सवाल कर सकते हैं about my wealth. मेरी दौलत के बारे I have spent 4 years without a meal at. I missed the lunch. में। मैंने 4 साल लंच किए बगैर गुजारे हैं Yeah.
Where were you people when I was hungry? जब मैं भूखा था तो उस वक्त आप लोग कहाँ थे? I sold plastic bottles. मैंने प्लास्टिक की बोतलें तक भी बेची I sold secretly the सूखियाँ रोटियाँ. और मैंने सूखी रोटियां भी बेची हैं, The dead bread crumbs. सूखी हुई रोटियां बेची हैं, Just to make some fare to reach my university. ताकि मैं अपनी यूनिवर्सिटी के लिए किराया बना सकूं। I have eaten 10 rupees the black grain, the भुने चने. ओके, मैंने 10 रुपए के जो भुने चने हैं वो भी लेकर खाए, Spending whole day on those 10 rupees. और उन 10 रुपए के चनों पर ही पूरा दिन गुजारा भी किया। And you people are questioning my wealth now. और आप लोग अब मेरी दौलत पर सवाल अगर उठाएं, I used to change 3-4 buses to reach back to my home. और मैं अपने घर पहुंचने के लिए यूनिवर्सिटी से 3-4 बसेस बदलता, But saving that fare and giving in the offering. और अपना वो किराया बचाकर वो मैं ऑफरिंग में देता था, हदिये में देता Where were you people? था। उस वक्त आप लोग कहाँ थे? So don't question now. इसलिए आप सवाल ना कीजिए। I know I am rewarded now. मैं जानता हूँ कि अब उसी का ही मुझे बदला मिल रहा है, And what me and my generation is doing now. और जो अब और मैं और मेरी नस्ल कर रहे हैं, You will see, I'm telling you, Pakistan will see the rewards. आप देखेंगे पाकिस्तान इसका रिवॉर्ड सिला देखेगा। My generation will receive 100-fold. मेरी नस्ल जो है वो 100 गुना इसका लेगी। You will see, church you will see. चर्च आप इस चीज को देखेंगे। Can you go into... you cannot outgive God in giving. आप खुदा को देने में हरा नहीं सकते, Never. आप कभी भी हरा नहीं सकते। Try it. आप कोशिश कर ले, You can never outgive him. आप खुदा को पीछे नहीं छोड़ सकते, Give हरा नहीं him. सकते। उसे दीजिए And try to defeat him in giving. और उसे देने में हराने की कोशिश He कीजिए, will return you. आपको वो सिला देगा, बदला देगा। And after 10 years you will be trying to satisfy the account. और 10 साल के बाद अपने अकाउंट को आप सेटिस्फाई कर रहे And हो, by the time you will be finishing the previous balance, और एक वक्त आएगा जब आप पिछला बैलेंस खत्म करेंगे God will reward you 100-fold again. और खुदा 100 गुना और उसमें डाल देगा। I'm telling you, you will never be able to outgive God. आप खुदा को देने में कभी पीछे नहीं रह सकते। In giving, देने में He gave His only begotten Son उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया and kept nothing. और अपने पास कुछ ना रखा। So how come is it possible He is defeated by your giving? कैसे हो सकता है कि वो आपके देने से हार जाए, यानी ना दे आपको? Before rapture, before the trumpet, कलीसिया के उठाए जाने से पहले, before this feast, इस ज़ियाफत से पहले give a lot. देते जाइए, ज्यादा दें, 100-fold on this earth, 100 गुना इस जमीन पर, and there are rewards और फिर आगे भी रिवॉर्ड्स हैं in Jesus' name. यीशु के नाम में। Can you go into the scripture, 1 Corinthians, पहला करंथियों इस हवाले को हम chapter देखेंगे। 3, तीसरा बाब, and it's verse 8 8वीं आयत से to 12. 12वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। We are learning about rewards. हम इनामात या सिला के बारे में सीख रहे हैं। I told you, मैंने आपको सिखाया, I told you, मैंने सिखाया आपको not only you will be transformed, कि सिर्फ आप ही नहीं बदल जाएंगे, your works will be transformed आपके काम भी बदल जाएंगे, into treasures. खजानों में बदल जाएंगे। Are you listening? Yes. Not you will be transformed सिर्फ आप ही नहीं बदलेंगे, into the new heavenly body. नए जिस्म में आसमान पर, Everything you did on this earth इस जमीन पर जो कुछ भी आपने किया होगा will be transformed. वो भी बदल जाएगा। Because whatever you are doing जो कुछ भी आप जमीन पर कर रहे हैं, is sowing seed. ये आप बीज बो रहे हैं। Every seed will be having new body. हर इस बीज का जो बो रहे हैं एक नया जिस्म होगा वहाँ। Now please go into the scripture and slowly read it. 1 Corinthians 3rd 8th verse. लगाने वाला और पानी देने वाला दोनों एक हैं, लेकिन हर एक अपना अजर अपनी मेहनत के मुआफिक पाएगा। Now if you read it carefully, अगर आप इसको गौर पढ़ें, गौर से पढ़ें, he is saying that there will be a time. कलाम कह रहा है कि ये एक वक्त आएगा, The time is coming. और वो वक्त आ रहा है, Shall be a time. और एक वक्त होगा। Read it again. लगाने वाला और पानी देने वाला दोनों एक हैं, लेकिन हर एक अपना अजर अपनी मेहनत के मुआफिक पाएगा। पाए. There is a time coming. एक वक्त आ रहा है The reward will be distributed. कि अजर बांटा जाएगा। But as I told you, जैसे मैंने आपको बताया, he is saying
कलाम कह रहा है according to his own works. कि अपने कामों के मुताबिक। Is it written? ये Read it लिखा हुआ again. है, ये लिखा है कलाम में। Again. लेकिन हर एक अपना अजर अपनी मेहनत के मुताबिक पाएगा। My reward according to my works. मेरा अजर जो है वो मेरे कामों के मुताबिक होगा। Not what your father has done. ये नहीं कि जो आपके बाप ने किया हो, Not what your mother is doing. और ये भी नहीं कि जो आपकी माँ ने किया हो, Not what your husband is doing. ये भी नहीं कि जो आपके शोहर ने किया Your हो, wife is doing. और या आपकी बीवी ने किया हो, Your children are doing. या आपके बच्चे कर रहे हैं। Everyone हर कोई will receive reward अजर पाएगा according to what he or she will do. जो कोई कर रहा होगा उसका ही। Now continue. क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। Now it's not the labor of cross that will reward you. ये सलीब की लेबर नहीं है, दुख नहीं है कि जो आपको बदला देगा, Not the labor of Jesus Christ on the cross. और ना ही यीशु के दुख जो सलीब पर उसने उठाए। He is very crystal clear. और ये साफ लिखा है यहाँ पर, He is saying your own works यानी आपके अपने कामों का जिक्र है यहाँ will be converted and rewarded. पर। उनका बदला आपको मिलेगा, वो बदल जाएंगे। Now what did you say? क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। तो खुदा की खेती और खुदा की अमारत हो। मैंने उस तौफीक के मुआफिक जो खुदा ने मुझे बख्शी नामुमार की तरह यूं रखी और दूसरा उस पर अमारत उठाता है। बस हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी इमारत उठाता है। Now he is saying be careful पौलुस यहाँ कह रहे हैं कि केयरफुल रहें, मोहतात रहें, while using and introducing the material कि जब आप किसी मटेरियल या चीज को मुतारफ करवाते हैं in the kingdom, बादशाहत में, that material should not be flammable. ये जो मटेरियल है वो उसको आग ना लग जाए, आग लगने वाला ना हो प्लीज। क्योंकि सिवाय उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। और अगर कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे So का this इशारा this is all the material ये सारी चीजें मादी चीजें हैं introduced by people. और ये लोगों ने मुतारफ करवाई। And he is saying that whatever you introduce, और कलाम ये कह रहा है कि जो भी आप मुतारफ करवाते हैं it should be a solid material, ये खालिस मटेरियल होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, not consumable by fire. यानी आग से जल जाने वाला नहीं। Are you listening? There is a manifestation of your works, आपके काम का इजहार है, and that manifestation will tell और ये इजहार बताएगा इस बात what quality of the material you brought into the kingdom. कि बादशाहत में किस तरह का मादा आप लेकर आए, काम लेकर आए। And if the material is flammable अगर आपका काम जो है या चीज मटेरियल जल जाने वाला है and it will be consumed by fire. तो फिर आग उसे जला देगी। Please finish. तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा वो उस काम को बता देगा और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है। Every work will be manifested. हर काम जाहिर हो जाएगा। Whatever you are doing in the house of God, आप खुदा के घर में जो कुछ भी कर रहे हैं, whatever you are doing, I'm telling you, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, whether it is on the stage or the backstage, जहाँ स्टेज के ऊपर आप कर रहे हैं या पीछे भी कर रहे हैं, the day is coming एक दिन आने वाला है when your works will be manifested जब आपके सारे काम जाहिर हो जाएंगे and fire will test them, और आग उनको टेस्ट करेगी, and then you will be shocked और फिर आप हैरान हो जाएंगे that there is not only gain in the spirit in the 1000 year, कि सिर्फ 1000 साल बादशाहत में हासिल ही नहीं है, there is a loss mystery as well. नुकसान उठाना भी है उसमें। Yeah, people will receive losses from the kingdom deposits. कुछ डिपॉजिट जो किया होगा, जमा किया होगा, उसमें लॉस भी होगा लोगों को। There is a profit and loss account in the kingdom. किंगडम में भी प्रॉफिट और लॉस है, जमा नफा या नुकसान है। It's not always giving you something, giving you back. और ये ही नहीं कि सिर्फ आपको वापस मिलता ही जाए, There is a loss probability. नुकसान का भी एहतमाल है, होने का चांसेस हैं। Read it again. तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, हाँ. क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा वो उस काम को बता देगा और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा। So think about, imagine this scripture. इस हवाले को जरा सोचिएगा। There is a throne.
तख्त है, आप देखें, and all we those who are ministering on this earth, और हम सब जो जमीन पर खिदमत कर रहे हैं, we are there with the works. और हम अपने कामों के साथ तख्त के सामने हैं। Lord, Pastor Naveed, me, I did this. हम कहेंगे खुदा मैंने, यानी पास्टर नवीद कहेगा मैंने ये किया है, And he will take that work, और लॉर्ड जो है इस काम को ले लेंगे, and there will be an oven और एक भट्टी वहां पर होगी, with the fire, उसके अंदर आग होगी, the furnace, आग की भट्टी, and that work will be sent into that lab. और वो काम जो मैं कहूंगा कि मैंने किए हैं उस लैब के अंदर जाएंगे, भट्टी And के there will अंदर, be the scanning through fire. और आग के अंदर से वो गुजारे जाएंगे। Think about, just close your eyes and imagine you are standing before the throne. आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप तख्त के सामने हैं। I want you to realize this scripture. मैं जानना चाहता हूं कि आप जाने इस हवाले को, You make it realized and make it a reality in your life. ताकि आप अपनी जिंदगी में इसको हकीकत बना लें। What I am trying to give you जो कुछ मैं आपको समझा रहा in हूँ your imaginations, आपके तस्वुरात में, it will come to pass, I'm telling you. और ये होगा, मैं आपको बता This रहा is my duty now, हूँ। ये मेरा फर्ज है अब that I should make it clear to you कि मुझे इस बात को आपको समझाना होगा that one day is coming कि एक दिन आ रहा है, and you will be standing like this, like you are imagining now. और जिस तरह अब आप तस्वर कर रहे हैं, आप तख्त के सामने खड़े होंगे। I am seeing in the spirit, some of you are trembling, your legs are trembling. मैं रूह में देख रहा हूँ कि आप में से किसी की टांगें कांप रही हैं, I see the works fell from your hands in the trembling, in the fear. और मैं देख रहा हूँ कि उस खौफ में कांपते हुए आपके हाथ से काम गिर रहे हैं। People of God, fear the Lord now. खुदा के लोगों, अब खुदा से डरो, Then you will never fear standing before Him. तब आपको डरना नहीं पड़ेगा उसके सामने I खड़े हो। see people trembling, मैं people देखता हूँ shaking कि better. कुछ लोग कांप रहे हैं वहां पर। Repent now अब तौबा कीजिए, and work now. अब काम कीजिए, Now is the time, now is the season. अब वक्त है, अब मौसम है। And this time will be snatched from you. फिर आपसे वक्त ले लिया जाएगा। There is every miracle on this earth, इस जमीन पर हर मौजज़ा है, but no one can perform the time miracle. लेकिन कोई भी वाक्य या वक्त का मौजज़ा नहीं दिखा The सकता। lost time cannot be restored, I'm telling you. खोया हुआ वक्त वापस नहीं आएगा। Not a single second you can come bring that back and challenge me that I can restore it. एक सेकंड को भी आप वापस नहीं ला सकते, बहाल नहीं The कर सकते। moment lost will be lost जो forever. लम्हा खो गया वो खो गया। Everybody who is watching me on this YouTube YouTube पर भी जो कोई मुझे देख रहा है and on the Facebook, और Facebook पर, work now. अब काम कीजिए, Close your eyes अपनी आंखें बंद and कीजिए just imagine the scripture. और हवाला पर, कलाम पर गौर You कीजिए। are standing right before the Lord Jesus Christ आप यीशु के सामने खड़े हैं and you are presenting your works, और अपने काम उसे दिखा रहे and हैं, the works are sent in the lab test by fire. और उन कामों को आग की भट्टी में टेस्ट के लिए भेजा गया है, Yeah, and you are not qualified. और आप क्वालिफाइड नहीं निकले, And the time other people are receiving rewards, और दूसरे लोग अपने इनाम या सिले को ले रहे हैं, other people are receiving their crowns, और दूसरे अपने ताज को ले रहे हैं, other people are receiving their robes, दूसरे अपने रोब्स या लबादे को and ले they रहे are हैं, receiving their garments. और अपने वो लिबास को ले रहे हैं। I see some people are receiving their treasures, और मैं देख रहा हूँ कुछ लोग अपने खजानों को वसूल कर रहे but हैं, some people are crying, लेकिन कुछ लोग रो रहे हैं, and there are tears, और आंखों में आंसू में देख रहा हूँ, even standing before the throne of Jesus, यहाँ तक कि तख्त के सामने भी रो रहे हैं, because their work is burned. क्योंकि उनके काम जल गए हैं, There is nothing left. और कुछ भी बाकी नहीं बचा। They are seeing towards me now और वो मेरी तरफ देख रहे हैं that we resisted this man, कि हमने इस मर्दे खुदा के साथ रहे, we resisted this teaching, हमने इस मर्दे खुदा की तालीम को मज़ाहमत की, and he is receiving many rewards, और अब इसको तो बहुत इनाम मिल रहे हैं, but we are having nothing in our और वो खाली हाथ है वहाँ। people of God. There is a time that खुदा is के coming. लोगों के वक्त आ रहा है Your works will be manifested, कि आपके काम जाहिर होंगे, and I do not want you to lose your reward. और मैं नहीं चाहता कि आप अपना सिला खो दें। This is the heart of Jesus Christ. और ये यीशु का दिल है, This is the heart of your Father. ये आपके बाप का दिल है। He does not want you to lose your reward. वो नहीं चाहता कि आप अपने इनाम सिले को खोएं। Do your works in this earth, on this earth with your heart, इस जमीन पर पूरे दिल से काम कीजिए, 100-fold 100 गुना लीजिए and 100-fold, और 100 गुना लीजिए, and bring the material that is required. और वो चीज, वो काम बादशाहत में लाएं जो चाहिए। Not the consumable and the flammable ऐसा material. काम नहीं जो जल जाने वाला हो। There
is a loss mystery in the kingdom. किंगडम में भी नुकसान उठाया जा सकता Your है। salvation is not challenged, I'm telling you. आपकी निजात चैलेंज नहीं है। You will be receiving your heaven entry, आप हेवन में दाखिल हो जाएंगे, but there will be no reward. लेकिन वहां पर आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। And then you will be wandering everywhere, और फिर आप वहां पे इधर उधर घूमते फिरेंगे begging for the bosom of Abraham. और इब्राहिम की गोद के लिए आप मांगेंगे। People of God, खुदा के लोग, this is the time to repent. ये वक्त है रिपेंट करने का। If you have never worked, अगर आपने कभी भी किंगडम में काम नहीं किया, this is the time. और ये वक्त है। The Lord is returning. लॉर्ड वापस आ रहे हैं, यीशु वापस आ रहे हैं, Jesus Christ is coming back. यीशु मसीह वापस आ रहे हैं, And the rewards are in his hands. और सिला इनाम उसके हाथ में He is है going to distribute. जो वो तकसीम करेंगे। But I do not want you to cry. मैं नहीं चाहता कि आप उस वक्त चिल्लाएं और रोएं। Yeah, this is the time to cry. ये वक्त है रोने का। Do something. कुछ कीजिए, Pray. दुआ कीजिए, Fast. रोजा रखिए, Give in the kingdom. और किंगडम में दीजिए, Find a proper man of God और सही मर्दे खुदा को ढूंढिए who is spreading the light. जो रोशनी को फैला रहा है। Support this ministry. उस मिनिस्ट्री, उस खिदमत को सपोर्ट कीजिए, Support that man of God. उस मर्दे खुदा को सपोर्ट कीजिए, God will provide you a man of God और खुदा आपको मर्दे खुदा मुहैया करेगा in your locality. आपके इर्द गिर्द ही, In Jesus' name. यीशु के नाम। Amen. आमीन, Amen. आमीन। So already saved, जो पहले ही निजात याफ्ता या बचे हुए हैं, but standing before the throne of God, लेकिन खुदा के तख्त के सामने अब खड़े हैं and the work is consumed. और उनका काम किया हुआ जल गया। The salvation is not consumed निजात नहीं जली, because it was the work of Jesus Christ. क्योंकि ये तो यीशु की वजह से मिली, But your works, लेकिन आपके काम, because they were your works, क्योंकि वहां आपके काम है they were consumed. जो जलेंगे। If you can finish this scripture. इस हवाले को हम खत्म करेंगे। जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा, और जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा। लेकिन What? Loss. क्या देखा आपने कि नुकसान? What? क्या देखा? Did you hear? क्या आप सुन रहे हैं? There is no reward. सिला नहीं, यहाँ There is बदला loss. नहीं, यहाँ नुकसान है। There is loss. नुकसान देखते हैं। Loss mean नुकसान का you मतलब है invested into a business. कि आपने कारोबार में सरमायाकारी की You were expecting some profit. और आप नफा की तवक्को कर रहे हैं, But suddenly, लेकिन अचानक at the day of payment, जब अदायगी होनी थी उस दिन को, they tell you that you couldn't make a profit. तो वो आपको बताते हैं कि आपको नफा नहीं हुआ, You have just gained loss. आपको तो नुकसान हुआ है। Your investment was genuine, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी सरमायाकारी बिल्कुल ठीक थी, but might be not in a way that was acceptable. लेकिन शायद इस तरह नहीं की गई थी कि जो काबिल कबूल हो। Maybe against the policies of the bank. हो सकता है वो सरमायाकारी बैंक की पॉलिसी के अगेंस्ट हो, सही ना हो। Let me tell you, make it clear to you. इसको हम वाजे करते हैं, समझते हैं। In this nation, इस कौम में, इस मुल्क में there are certain investments खास सरमायाकारी है like people are doing. जो लोग कर रहे हैं। Some people purchase dollars कुछ लोग डॉलर खरीद लेते हैं and they wait for their rates are increased और वो इंतजार करते हैं कि डॉलर का कब रेट बढ़ता है and then they exchange it. और वो उसका तबादला कर लेते हैं। Is it the legitimate, the legal business? क्या ये एक जायज़ काम है? According to the laws of Pakistan and State Bank of Pakistan, it is illegal. और स्टेट बैंक के मुताबिक ये जायज़ नहीं है ये काम। It is horse trading. और ये हॉर्स ट्रेडिंग के बराबर है। Yeah, it is considered money laundering. और इसको मनी लॉन्ड्रिंग भी कहते हैं। You cannot hoard. आप ज़खीरा नहीं कर सकते, जमा नहीं कर सकते। Yeah, it should be in the circulation of the country, in the economy. यानी रुपया पैसा सर्कुलेशन में घूमता रहना चाहिए। So actually you have invested. दरअसल आपने तो सरमायाकारी की, You are doing a business. आप कारोबार कर रहे हैं, But it's against the policies of the kingdom. लेकिन ये मुल्क या बादशाहत के खिलाफ कर रहे हैं आप। Are you listening? That's why if the FIA or the FBR, they will catch you. और अगर FIA और FBR आपको इसमें पकड़ लेता है, You are waiting for your profit. आप तो अपने नफा के इंतजार में हैं। But not only the profit will be hijacked, ना सिर्फ आपका नफा जो है वो रोक लिया जाएगा, but your investment as well. आपकी सरमायाकारी भी रोक ली जाएगी। They will
raid on your home or your hoarding house, वो आपके ज़खीरा की जगह पर आकर हमला करेंगे and then they will retrieve all the money as well. और वो सारे पैसे भी ले लेंगे। Actually, you went against the policies of the kingdom. आपने चूंकि उस मुल्क की जो पॉलिसी थी उसके खिलाफ गए। Similarly will happen in the kingdom of Jesus Christ. यीशु की बादशाहत में भी ऐसा होगा। Some of them, they are serving the Lord, कुछ खुदा की खिदमत कर रहे हैं but against the policies. लेकिन पॉलिसी के खिलाफ कर रहे हैं। The day is coming. लेकिन एक दिन आ रहा है, Like my son asked his reward. जैसे मेरे बेटे जैसी ने अपने इनाम के लिए कहा। Some people are asking their reward on daily basis कुछ लोग रोजाना की बुनियाद पर अपने इनाम को मांग रहे हैं from the pastors, पादरियों से, from the ministries, मिनिस्ट्रियों से, and they are begging, they are stretching for their hands. और वो अपने हाथ फैला रहे हैं भिखारियों की That तरह। we did this, you know, you do this. हमने ये किया है तो अब हमारे लिए ये किया जाए। It's not sin ये गुनाह नहीं है if it is decided already अगर ये पहले से तयशुदा है as तो। your wage or your salary, अगर आपकी सैलरी या मजदूरी ठहराई गई, but it is illegal. लेकिन ये नाजायज है। Like my son, जैसे मेरा बेटा कह रहा I did not ask you to work. है, मैंने उसे नहीं कहा था कि वो काम करे, He started at his own उसने अपनी मर्जी से ही शुरू किया। because there was in his mind, back in his mind, उसके ज़हन में था ये पहले से that money is attached with working, कि काम के साथ जो है रुपया पैसा जुड़ा हुआ है, and I will work मैं काम करूंगा if the need or not. चाहे काम की जरूरत है भी या नहीं है। If this man has called me to the ministry अगर इस आदमी ने मुझे बुलाया है मिनिस्ट्री के लिए or not, या नहीं I बुलाया, will work मैं काम करूंगा and I will take money. और मैं पैसे लूंगा। This is happening right now. और ये यहाँ पे ऐसे हो रहा है। Some of people, they are serving in the kingdom कुछ लोग बादशाहत में खिदमत कर रहे हैं without being called, बगैर बुलाए हुए, just for the sake of money. सिर्फ पैसों के लिए। A day is coming, लेकिन एक दिन आ रहा है your work will be destroyed. कि आपके काम जो है वो जल जाएंगे। Please finish this scripture. और जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा, लेकिन खुद बच जाएगा मगर जलते जलते। This is what the work of Jesus Christ. ये जो बचे हैं ये यीशु का किया हुआ काम, That is saving you. जो आपको बचा रहा है, That is saving you. जो आपको बचा रहा है। But your works are destroyed. लेकिन आपके काम जो है वो तबाह हो गए। Can you go into the scripture, 2 Timothy chapter 4:8, दूसरा तिमोथेयुस उसका हम चौथा बाब पढ़ेंगे quickly? And after you go into the scripture, Matthew 10:41. मत्ती 10 बाब। It's 2 Timothy 4:8. आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुनसिफ यानी खुदावन मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हों। I think so. You didn't listen it. मेरे ख्याल में आपने कलाम को सुना नहीं है जो पढ़ा गया, Please read it again. दोबारा पढ़िएगा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ Which crown? कौन सा ताज रखा है? I want you to focus on this word righteousness. रास्तबाजी पे गौर कीजिएगा। Then I will touch this again. इस पर मैं वापस आता हूँ। Please continue it. जो आदिल मुनसिफ यानी खुदावन मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं। Those who are anticipating his manifestation. वो लोग जो उसके जाहिर होने के इंतजार में हैं, तवक्को कर रहे हैं, Actually, they live a righteous life. उन्होंने रास्तबाजी की जिंदगी गुजारी, So in reward, they receive the crown of righteousness. बदले में उन्हें जो है रास्तबाजी का ताज मिल रहा है। Those who are not waiting for the Lord Jesus Christ, वो लोग जो यीशु का इंतजार नहीं कर they रहे are doing everything. वो सब कुछ कर रहे They हैं, don't fear. वो डरते भी नहीं है, So they are not living a righteous life. वो रास्तबाजी की जिंदगी नहीं गुजार That's रहे, why they will miss the righteousness crown. इसलिए उन्हें रास्तबाजी का ताज भी नहीं So I मिलेगा। want you to continue from Matthew 10:41 मत्ती 10 बाब से हम इसको पढ़ेंगे, in the link of this same scripture. इस हवाले के तौलक से ही आगे बढ़ेंगे। Okay. जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। Now I have already touched and taught you in the first passage, पहले हिस्से में मैंने पहले ही आपको सिखा दिया है, but let me touch the another hissa.
अब एक दूसरे हिस्से को भी छूते हैं। The second part of this same scripture, इसी हवाले का दूसरा हिस्सा, the righteousness part. यानी रास्तबाजी वाला हिस्सा। Can you read it? और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है। Now think. आप सोचिए, गौर कीजिएगा, Imagine. तसव्वुर करें I am righteous, कि मैं रास्तबाज हूँ, for example. मिसाल के तौर पर। Because if I will call Pastor Ashar righteous, maybe you will question. Especially this person, nobody is accepting him as righteous. Okay? Are you okay with this selection? It's Pakistan. With your section. With Pakistan. For example, for instance, take him as a righteous man. मिसाल के तौर पर इस शख्स को रास्तबाज के तौर पर लीजिए। No, on this earth there is another person. For example, take me as not a righteous person. एक और शख्स इस जमीन पर ले लीजिए, चले मुझे ले लीजिए कि वो रास्तबाज नहीं है। Now, go into this scripture again. आप इस हवाले को दोबारा पढ़ें। और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है। I am receiving and honoring this righteous man, being unrighteous person. मैं नाराज होते हुए इस शख्स को रास्त कबूल कर रहा हूँ। I am honoring him. मैं इसकी इज्जत कर रहा हूँ। I am washing his feet. मैं इसके पाँव धो रहा हूँ। I am giving him clothes. मैं इसको कपड़े दे रहा हूँ। I am feeding him. मैं इसको खाना खिला रहा हूँ। Or giving him a monthly. और इसको महाना पैसे दे रहा हूँ। For the ministry. खिदमत के लिए। For a righteous life. रास्तबाजी की जिंदगी। Still I am unrighteous. मैं नाराज़ हूँ। Now see the results. लेकिन आप सिला या बदला देखिएगा। वो रास्तबाज का अजर पाएगा। No. Did you get what I'm trying to? जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, समझ पाए? If you are not in the prophetic ministry, अगर आप prophetic ministry में नहीं है, नबूवती खिदमत में नहीं you है, have never seen a vision, never dreamed a dream, आपने कभी रोया नहीं देखी, कोई कभी ख्वाब नहीं देखा, but you ministered to a prophet. लेकिन आपने किसी नबी की खिदमत की हो, Bible says you will receive the reward of the तो कलाम कहता है आपको बदला मिलेगा। which? कौन सा बदला मिलेगा? The reward of the prophet. नबी का बदला मिलेगा। The day Jesus will be giving rewards, you जिस दिन and that prophet will receive the same rewards. और जिस दिन यीशु इनाम दे रहे होंगे, आप और वो नबी एक ही इनाम लेंगे। Now similarly, इसी तरह से, in the same manner, इसी तरह से go down to this passage now. इस हवाले को दोबारा देखिए। There is a righteous man एक रास्तबाज शख्स है who is living a righteous life. जो रास्तबाजी की जिंदगी गुजार रहा है, And there is a man who is not up to that righteous standard. और एक शख्स है जो कि उस रास्तबाजी के मकाम तक नहीं है। That person must find a righteous man around him or her. उस शख्स को अपने इर्द गिर्द कोई रास्त शख्स ढूंढना चाहिए And start serving that righteous person all the time. और उस रास्तबाज की हर वक्त खिदमत में लग जाना चाहिए And feeding and taking care of the life. और उसकी जिंदगी का ख्याल रखें, उन्हें खाना खिलाएं। And a day will come. और एक दिन आएगा This righteous man कि वो रास्त शख्स जो है and me और वो दूसरा यानी नाराज जो है, being unrighteous जो कि नाराज है, will receive the same rewards. उन्हें एक ही इनाम या बदला मिलेगा। The reward of a righteous person. यानी रास्त को जो रिवॉर्ड मिला वही उसको भी Are you मिलेगा। listening? Yes. This is not me. This is not me telling you. ये मैं नहीं आपको बता This रहा, is Jesus Christ. ये यीशु कह रहे हैं यहाँ। This is the word. ये कलाम कह रहे हैं। Maybe you are shocked. हो सकता है इस बात से आप हैरान हुए हो। Righteousness is transferable thing. रास्तबाजी जो है वो दूसरे तक मुंतकिल होने वाली चीज है। I'm telling you, righteousness is a transferable thing, material thing in some substance रास्तबाजी मुंतकिल हो सकती है एक से दूसरे की तरफ in the kingdom. बादशाहत में। Have you not received the righteousness of Jesus Christ? आपने यीशु की रास्तबाजी को क्या वसूल नहीं किया? Ah? Have you not? क्या नहीं किया? We are righteous because of His. हम उसकी रास्तबाजी की वजह से रास्तबाज हैं। It is transferable thing. इसका मतलब है ये मुंतकिल हो सकती है। Let me solve another problem. एक और मसले को हल करते हैं। Going to the scripture where Paul says, 1 Corinthians 7, the marriage issue. पहला ग्रंथियों 7वां बाब, वहां पे हम पढ़ते हैं पौलुस रसूल कह रहे हैं खास तौर पर शादी के मामले के I'm saying, people of God, find a righteous man in your life. अपनी जिंदगी में मैं कह रहा हूँ कि रास्त शख्स को, रास्तबाज को ढूंढिए, चुनिए, Take care of his family and his life. उसकी जिंदगी और उसके खानदान का ख्याल रखिए, Give him fueling, give him shampoo, give him soap, give him towel. उसको तौलिया दें, उसको साबुन दें, उसको फ्यूल दें, ईंधन दें। You will receive
receive the rewards. आपको उसका बदला सिला मिलेगा। Even though you are struggling in your righteous life, चाहे आप अपनी रास्तबाजी की जिंदगी में जद्दोजहद का शिकार क्यों you नहीं, are falling again and again in sin. आप गुनाह में बार बार गिर भी रहे हैं, You are not touching the manner, touching the standard of the righteousness. आप रास्तबाजी के म्यार को नहीं छू पा रहे। But if there is a man around you in your surrounding लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द में कोई ऐसा शख्स who is है righteous, जो रास्तबाज है, God is in love with you. तो खुदा आपसे मोहब्बत कर रहे हैं। He wants you to receive the rewards same this person will carry. वो चाहता है कि आप वही सिला इनाम लें जो वो शख्स ले Are you रहा है। listening? Yes. Are you listening? Yes. If you find Brother Numan, if you find Pastor Asher righteous, support them. अगर पास्टर आशर या भाई नुमान तरह का शख्स रास्तबाज मिलता है, उनको सपोर्ट करें, Support them. उनकी हमायत करें, सपोर्ट करें। A day is coming. एक दिन वक्त आ रहा है, You will be standing parallel to them, आप इनके साथ ही खड़े होंगे catching the same thing. और वही इनाम ले रहे होंगे। Hallelujah. 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 So God is not partial. खुदा जो है वो जुज़वी या पार्शियल गॉड नहीं है। Janardar. यस, He is not a partial God. वो जानबदार खुदा नहीं है। He loves you. वो आपसे मोहब्बत He करता loves me. है, वो मुझसे मोहब्बत करता In the matter of rewards, है। रिवॉर्ड के मैटर में He wants balance वो चाहता है कि हम तो वो तवाज़ुन में रखें in the kingdom. बादशाहत में, But somebody still will miss. लेकिन फिर भी कोई ना कोई खो देगा। Okay, please. It should be verse 14. 14वीं आयत में पढ़ेंगे। क्योंकि जो शोहर बा ईमान नहीं वो बीवी के सबब से पाक ठहरता है। How? कैसे ही होगा, Why? क्यों होगा ये? Some people are questioning me always. हमेशा कुछ लोग मुझे सवाल करते रहते हैं। I'm answering you from this post-rapture reward teaching. मैं पोस्ट रैप्चर रिवॉर्ड टीचिंग जो तालीमात दे रहा हूँ उसी में से मैं आपको जवाब दे देता हूँ This woman who is a godly woman कि ये औरत जो कि खुदा की खौफी में रहती, खुदा खौफ में रहती, married an ungodly person. उसने ऐसे शख्स से शादी कर ली जो खुदा के पास नहीं है। The word says, कलाम ये कहता है, Paul says पौलुस ये कहते in the revelation, हैं इस मुकाशफा में he says वो कहते हैं that कि this person ये शख्स जो who है is ungodly, जो खुदा के पास नहीं है, because of the godly woman, सिर्फ खुदा तरस खातून की वजह से, औरत की वजह will be से saved. बचा लिया जाएगा। Why? क्यों ऐसा होगा? This woman ये औरत जो है is on a missionary journey now. It's not a marriage life. ये सिर्फ अब शादी की जिंदगी नहीं वो गुजार रही, बल्कि एक मिशनरी की जिंदगी गुजार रही। It's a missionary journey started with an ungodly person. ये ऐसे शख्स के साथ जो नाराज था उसके साथ एक मिशनरी सफर उसका शुरू हो गया। And the moment that ungodly man will love the wife, और जिस लम्हे वो नाराज शख्स अपनी बीवी से मोहब्बत करेगा, will feed her, उसको खाना खिलाएगा, will support her, उसकी हमायत करेगा, will back up her उसकी हमायत in करेगा, the family affairs, खानदानी सारे मामला, will respect her. उसकी इज्जत करेगा। The same scriptures, Matthew 10:41 will और मत्ती का वही हवाला बिल्कुल यहाँ पर हम it देखें, will be implemented. और ये हवाला वो कलाम यहाँ भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। The righteous and the unrighteous. यानी नाराज और राज की जो बात हमने सीखी, This person, the ungodly, ये शख्स जो नाराज था यानी उसका शोहर, will be saved. वो बचा लिया जाएगा। Read it. इसको पढ़िएगा। क्योंकि जो शोहर बा ईमान नहीं वो बीवी के सबब से पाक ठहरता है और जो बीवी बा ईमान नहीं वो मसीही शोहर के बाइस पाक ठहरती है। So at least one कम से कम एक को in the house यानी घर में should be a godly यानी खुदा खौफी में होना चाहिए, person. खुदा का बंदा होना चाहिए। It's better ये बेहतर है that you don't engage yourself in uneven yoke. कि आप अपने आप को नाहमवार जुए में ना जोतें, But if by mistake, लेकिन अगर गलती की वजह से, Danish is smiling that now I got a point. He is smiling. I have learned this revelation. नहीं, I will find a girl now. Yeah, he is thinking दानी सोच रहा है कि मुझे शायद ऐसी लड़की मिले she will be a model. कि वो मॉडल हो। Is it? कैसे सोच रहे हैं? Is it? Huh? So he is smiling. I am relaxed now. मुस्कुरा रहे इसलिए मैं रिलैक्स हूँ।
I'm saying try to avoid uneven yoke. मैंने कहा कोशिश कीजिए ना हमार जुए में ना जुते। After all, it's not the missionary journey. ये मिशनरी जर्नी नहीं होगा। It's not only a missionary journey. ये सिर्फ मिशनरी जर्नी नहीं होगा। You will come back and you will ask him for the dinner. आप वापस आएंगे और उसे यानी अपनी बीवी को खाने के लिए पूछेंगे डिनर के लिए। And if you will consider yourself as a missionary that he is coming, she will never feed you. So you need a godly woman as well. आपको खुदा खौफ वाली औरत चाहिए। Try to find that one. ऐसी ही ढूंढने की कोशिश करें। By mistake I'm telling you, अगर गलती से मैं कह रहा हूँ, if it is happening, अगर हो जाता है जिंदगी में, then don't cry. तो फिर रोएं भी ना, You चलाएं भी keep ना। spending your life righteous. आप अपनी जिंदगी को रास्ते में गुजारते रहें। That spouse will be saved कि आपका जो साथी है वो बच जाएगा उस वसीला से, because of your righteousness. आपकी रास्तबाजी की वजह से। Now please continue. Finish it. वरना तुम्हारे फर्जंद नापाक होते। So he is even saying your offspring. वो यहाँ तक कह रहा है कि आपकी औलाद जो है, If you are righteous, अगर आप रास्त हैं, they will be saved. वो बच जाएंगे, बचा लिए जाएंगे। Do you know the formula now? अब आप फॉर्मूला जान गए हैं? Got it? क्या आप इसको समझ गए? It's not difficult. मुश्किल नहीं है ये। Making heaven is not difficult. आसमान पर जाना मुश्किल नहीं है। Marry a godly person. सिर्फ आप एक राज शख्स से शादी करें। If a godly girl is waiting for 30 years, 31 years, 34 years, और अगर एक राज लड़की जो है 30 साल से 35 साल से इंतजार कर रही है, unmarried sitting at home, और एक गैर शादीशुदा घर बैठा है, and you are not married as well, और आपकी भी शादी नहीं हुई, and you are not even saved, और आप सेव्ड नहीं यानी निजात याफ्ता नहीं है, still God has loved you फिर भी खुदा ने आपसे मोहब्बत की by keeping that godly girl single, उस रास्तबाज लड़की को अकेला रखकर, so that you get married with that girl and get saved. कि आप उस लड़की से शादी करें और बच जाएं। You don't know the mechanism of the kingdom. आप खुदा के तरीकाकार को, बादशाहत को नहीं जानते। If you are not listening to a pastor, you are not listening to an evangelist, अगर आप पादरी को नहीं सुन रहे, किसी इवेंजलिस्ट को नहीं सुन रहे, you can be saved through a godly wife. तो आप सिर्फ एक रास्त बीवी के जरिया से बच सकते हैं। Hello, are you listening? Yes. I remember the example of my mother-in-law. मुझे अपनी मदर इन लॉ सास की जो मिसाल याद है। My father-in-law was not so deep in God, मेरा ससुर जो था वो खुदा में इतना गहरा नहीं था, but because of her prayers, लेकिन इनकी दुआओं की वजह से he went to be with the Lord as a powerful minister of God. वो बहुत पावरफुल मिनिस्टर के तौर पर यहाँ से जमीन से गए हैं आसमान पर। Not just saved, सिर्फ निजात याफ्ता के तौर पे but नहीं, saving thousands, बल्कि हजारों को बचा कर गए हैं, healing the sick, और बीमारों को शिफा देकर गए, delivering the possessed, और बदरू गिरफ्तार को आजाद करके गए, only because of her life. सिर्फ इनकी जिंदगी की वजह से। And I'm the example of the same story. मैं भी इसी तरह की कहानी की एक मिसाल हूँ। My wife was more deeper than me in the Lord. मेरी बीवी खुदा में मुझसे बहुत गहरी थी। Yeah, I confess it. मैं इस बात का इतराफ कर रहा हूँ। And she actually became a reason और वो एक वजह बनी that I am perfected. कि मैं कामलियत में बढ़ जाऊँ। Are you listening? Are you listening? I was a worldly man, मैं एक दुनियादार शख्स था running from God. और खुदा से दूर दौड़ता था। Most of you know that I used to sing ghazals, और आप में से ज़्यादातर जानते हैं कि मैं गज़लें भी गाता था, secular ones, यानी दुनियावी शायरी की गज़लें, sitting in the mahfils. और दुनियावी महफिलों में बैठता था। But लेकिन God had mercy on me, खुदा ने मुझ पर रहम किया giving me a partner और मुझे एक साथी बख्श दिया, who just by being attached with her, अपने साथी के साथ जुड़ने की वजह से I am made perfected. मैं कामिल होता गया, हो गया। Thank God. खुदा Thank का God. शुक्र इस बात, Thank God. खुदा का शुक्र। You can clap for your spouse if that is a godly person. आप अपने साथी के लिए अगर वो राज शख्स है ताली बजा You सकते can हैं, clap आप ताली बजा सकते हैं, because your salvation is attached with that person. क्योंकि उस शख्स के साथ ही आपकी निजात जुड़ी है। It's the appreciation to God as well. और ये जो है खुदा की तारीफ में भी बनता है। Don't worry.
आप परेशान ना हो। If your husband is not supporting अगर आपका शोहर सपोर्ट नहीं कर रहा on this level, इस सतह पर what you are expecting, जो आप तवक्को कर रहे हैं, but still because of you, लेकिन फिर भी आपकी वजह से your family is getting together in the paradise. फिरदौस में आपका खानदान इकट्ठा हो जाएगा आपकी वजह से। It's a mystery solved now. ये जो मिस्ट्री थी, एक राज था, ये अब हल हो गया। I already told you that righteousness is transferable thing. मैंने आपको पहले ही बताया कि रास्तबाजी मुंतकिल होती है। You will get the rewards of a righteous. Think about, he spent all his life as a righteous person. उसने अपनी सारी जिंदगी गुजारी रास्ते में, Me not. मैंने नहीं गुजारी। And on the day of reward, लेकिन उस दिन जब अजर मिलेगा, getting the same things. और बराबर दोनों को मिल रहा है, Because I got him क्योंकि मुझे वो राज शख्स मिला and I served him. और मैंने उसकी खिदमत की। I am giving you the formula मैंने आपको एक फार्मूला दे दिया given by Jesus Christ. और ये यीशु ने दिया हुआ है, So simple. और बिल्कुल सादा फार्मूला है। But some still they will miss the rewards. लेकिन फिर भी रिवॉर्ड को कुछ मिस करेंगे, They will miss it. कुछ मिस कर देंगे रिवॉर्ड को। Can I teach more? क्या मैं कुछ और सिखा सकता हूँ? Are you tired? क्या थक गए हैं? Anybody? कोई थका तो नहीं? I respect your decision if I should leave. मैं आपके फैसले की इज्जत करता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो बंद कर दें। Huh? You are so greedy. लालची है। Apple folks and so in the kingdom of God, in the kingdom of heaven, आसमान की बादशाहत में money is not the exchange rate. This money, ओके, ये पैसा जो है जमीनी, ये Actually- वहाँ पे एक्सचेंज रेट नहीं होगा, yeah, actually is not the medium of exchange. यानी वहाँ पर ये तबादले का जरिया नहीं होगा। Definitely this will be transformed and converted into something else. ये यानी यहाँ की चीज यानी रुपया पैसा भी ये और चीज में वहाँ पे बदल जाएगा। But riches, heavenly riches are something else. लेकिन जो आसमानी दौलत है वो कुछ और है। Do you remember there is a scripture in the book of Revelation? मुकाशवा की किताब में एक हवाला I आपको don't याद है? exactly remember. मैं उसको सही तरह से याद नहीं कर पा रहा, But in that scripture God says, buy from me. लेकिन उस हवाला में लिखा है, खुदा कहता है कि मेरे से खरीद। I think so, the Surma? यस, Is it the same scripture? Fine, okay, thank you. इसलिए मैं No, तुझे scripture, first scripture. काशफा हाँ. तीसरा बाब 18 Is 3rd chapter and verse 18th. मुकाशवा तीसरा बाब 18 है। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले। What? क्या खरीद ले? Buy something. कुछ खरीद ले। How do you buy? आप कैसे खरीदते हैं? When you will be in the kingdom, जब आप बादशाहत में होंगे, how would you buy? आप कैसे वहां खरीदेंगे? Definitely you should present something in exchange. बदले में कुछ ना कुछ जरूर देंगे तो। It's mean there are the heavenly riches. इसका मतलब है आसमानी दौलत You should possess them. आपके पास वहां वो होनी चाहिए। Now remember the scripture where Jesus said, transfer your wealth into the kingdom. अब उस हवाले को याद कीजिए जहाँ लिखा है कि अपना खजाना आसमान पर जमा करो, Deposit it into the kingdom. यानी बादशाहत में आसमान पर जमा करो। There you will have more riches, वहां पे आपको ज्यादा मिलेगा और more दौलत मिलेगी, treasures. और खजाने मिलेंगे। So on this earth, इस जमीन के ऊपर in your money, आपके जो पैसे हैं there is capacity उसके अंदर सलाहियत है that it can be converted कि उसको बदला जा सकता है and be a more powerful material treasure in the heaven, और वो हेवन में एक ताकतवर खजाना बन सकता है, presentable to God, ऐसा खजाना जो खुदा को पेश किया in जा the सकता है। supermarket of God. खुदा की सुपरमार्केट के अंदर You will go, आप जाएंगे, you will find a dress there. आप वहां पे एक पता कोई ढूंढेंगे God, I want to purchase this one. और कहेंगे कि ये लिबास मैं खरीदना चाहता हूँ, And you will present the money, और उसके बदले में आप पैसे देंगे, the exchange, whatever you will be having. और जो कुछ भी
भी आपके पास होगा उसके बदले में देंगे। God, I want this crown. आप खुदा से कहेंगे ये मुझे ताज चाहिए। Today is our family festival आज हमारा खानदान का कोई फेस्टिवल है and we are getting together. और आज हम इकट्ठे हो रहे हैं उस प्रोग्राम में। We want some special dressing. हमें कुछ खास लिबास चाहिए इसके लिए। And then you will go और फिर आप वहां पे जाएंगे and you will ask, और कहेंगे God, I want this surma. कि खुदा मुझे ये सुरमा चाहिए, Give me. ये मुझे दीजिए। And he will ask you, और वो आपसे कहेंगे what is in your hand? कि भाई इसके बदले में क्या है आपके पास। Then you will go back. आप जब वापस जाएं Wear your old clothes. अपने पुराने कपड़े पहने। You received one from me आपको एक मिल तो गया मेरे से in reward. जो कि आपका बदला था, सिला था। You have no balance in your account. अब आपके अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है And there is no credit card. और कोई वहाँ पे क्रेडिट कार्ड भी नहीं होगा। Go and enjoy this only suit. और जो आपके पास ये लिबास एक है, सिर्फ इससे लुत्फानंदोज हो। Spend 1,000 years in this only suit. 1000 साल पूरे इसी लिबास में गुजार दे। No party wears. कोई भी पार्टी के कपड़े नहीं मिलेंगे। I'm just giving you the glimpse of the 1,000 years. मैं 1000 साल बादशाह की झलक आपको दिखा रहा Then you will have a get together हूँ। जब वहाँ पे आप इकट्ठे होंगे in the paradise. फरदौस में, You need makeup, आपको मेकअप की जरूरत हो beauty. खूबसूरत बनने की It जरूरत हो is written in the book of Revelation मुकाशवा में ये लिखा है about the beauty of the makeup of the bride. दुल्हन की खूबसूरती या रास्ती के बारे में लिखा है, It's written. ये लिखा हुआ है। So you can get the makeup things, the ornaments written are there. कलाम में लिखा है, जेवरात के बारे में लिखा हुआ है, Ornaments are there. वहाँ पर जेवरात हैं। Think about the bride. दुल्हन के बारे में सोचिए No ornament. कि कोई उसने अगर जेवर ही ना पहना हो, As if she is going for the funeral service. और ऐसे लगे जैसे वो किसी जनाजे की रस्म में जा रही है, No ornaments. कोई जेवर ही नहीं पहना हो, Because no money in hand. क्योंकि उसके पास वहाँ पे पैसे नहीं है। No medium of exchange. उसके बाद तबादले की कोई चीज ही नहीं है उसके पास। Save money in the heaven. आसमान पर अपने पैसे जमा करें, Treasures. खजाने जमा करें, You will get there. आप वहाँ पे लेंगे, हासिल करेंगे। Where there is your treasure, जहाँ आपका खजाना है, there shall be your heart. वहाँ तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। The gravitational force. ये एक कश्श सकल है, कुव्वत है ये। You will meet your treasures first आप पहले अपने खजाने को मिलेंगे when you will be caught up. जब आप आसमान पर उठाए So जाएंगे। actually your treasure is calling you. दरअसल आपका खजाना आपको ऊपर बुला रहा है। Do you know? क्या आप जानते हैं? On this earth, इस जमीन के ऊपर when a person dies, जब कोई शख्स मर जाता है leaving any inheritance और कोई विरासत छोड़ता है पीछे, in the bank balance, चाहे वो बैंक बैलेंस की शक्ल में in the property shape, या फिर वो प्रॉपर्टी जायदाद हो, the government they find out the offspring तो हुकूमत जो है उसकी औलाद को, बच्चों को ढूंढती है and they transfer it और वो उसको मुंतकिल कर देती है that person. उन औलाद को, शख्स को। You have the right to carry this legacy. आपके पास हक है कि आप इस विरासत को साथ ले जाएं। Similarly, इसी तरह से your wealth आपकी दौलत is waiting वो इंतजार कर रही for है you to be there. आपका कि आप वहां पर आए, Automatically, और ऑटोमेटिकली you will be attracted, pulled towards that treasure. आप अपने खजाने की तरफ माइल होंगे, खिंच जाएंगे। No, you will never knock a door of any bank. Where is my treasure? आपको किसी बैंक का जो दरवाजा नॉक नहीं करना पड़ेगा कि मेरा ट्रेयर कहाँ पर है। You will reach on the location. आप बिल्कुल जहाँ आपका खजाना है उस जगह ही पहुंचेंगे। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Amen. What should I share more and close it? So buying from God, खुदा से खरीदें। you can see this in the 1,000 year. आप देख सकते हैं ये 1000 साल बादशाह, They will be buying and purchasing. खरीदारी वहां पे होगी, खरीदो फरोख्त होगी। You can increase your abilities आप अपनी सलाहियत, काबिलियत को बढ़ा सकते हैं in the 1,000 year. 1000 साल बादशाहत में भी। Yeah. As you are upgrading your living standard on this earth, जैसे आप इस जमीन पर अपनी जिंदगी के मेयार को बेहतर करते हैं, you can upgrade there as well. आप वहां भी बेहतर खुद को कर सकते हैं। There is a scripture I remember. एक हवाला मुझे याद आ रहा है, I think so. It's in Psalm 103. और ये ज़बूर 123 में है। Yeah, 103. 103 में है ये। There the psalmist says, ज़बूर नवीस लिखता है even angels कि फरिश्ते भी
they increase their power, their strength. वो अपनी ताकत को, कुव्वत को बढ़ाते हैं। So you think that angels are in the final state of their strength? आप ये सोचते हैं कि फरिश्ते जिस हालत में है वो उनकी फाइनल हालत है? No. ऐसा नहीं है। No, 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 no. ऐसा नहीं। They actually increase in it. वो अपनी ताकत में बढ़ते हैं, In the strength. अपनी कुव्वत में बढ़ते हैं। How? कैसे बढ़ते हैं? Through the obedience. और ताबेदारी के जरिया से बढ़ते हैं। Did you find the scripture? Which one is this? It's 20th. I need in English as well. Please read in Urdu first. ऐ खुदावंद के फरिश्तों, It's Psalm 103, ज़बूर 103 उसकी 20 आयत। 20th verse. ऐ खुदावंद के फरिश्तों, उसको मुबारक कहो, तुम जो जोर में भड़कर हो। Now pause. In English, it will make a clear statement. Okay. Bless the Lord, you his angels that excel in strength. That excel in strength. यानी जो कुव्वत में बढ़ते हो। Yeah. Yes. You can easily get it what I'm trying to say. Present definite। Yeah, present indefinite. You excel. आप बढ़ते हो। It's a type of verb. ये एक किस्म का फेल है, वर्ब है, ग्रामर है You excel. कि आप बढ़ते हो। How? कैसे बढ़ते हो? And in which way? और किस तरह से बढ़ते हो? In your strength. अपनी ताकत में, कुव्वत में। So angels are not on the final stage of their strength. तो फरिश्ते हम नहीं कह सकते कि अपनी फाइनल स्टेज पर In पहुंच the चुके हैं। kingdom, बादशाहत में they do the obedience. वो ताबेदारी करते हैं। Please complete this scripture. That do his commandments, hearkening unto the voice of his word. Hearkening unto the voice of his word. When God speaks, they hearken towards. जब खुदा बोलता है तो वो उसके कलाम को सुनते हैं And they fulfill the command. और वो उसके हुक्म की ताबेदारी करते हैं। Just because of obedience, सिर्फ ताबेदारी की वजह से they are increasing their strength. वो अपनी कुव्वत को बढ़ा रहे हैं। That's why people of God, I'm telling you, इसीलिए मैं आपको ये बात वाज़ेह कर रहा हूँ hearken the word of God today कि आज खुदा के कलाम को सुने and obey it. और इसकी ताबेदारी करें। You will receive certain abilities. आपको खास फिर सलाहियतें मिलेंगी। You will be flying without any problem. आप बगैर किसी मसले के आगे उड़ रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे। You will be changing cloth without any problem. आप किसी मसले के बगैर जो है अपने क्लॉथ या लिबास बदल रहे होंगे। You will be buying and purchasing anything. और कुछ भी इस जमीन पर आप खरीद रहे होंगे। You will be ruling over more people. आप ज्यादा लोगों पर हुक्मरानी कर रहे होंगे। More abilities ज्यादा सलाहियत होगी आपके अंदर can be received और वो हासिल कर ली जाएगी just by obeying. सिर्फ ताबेदारी से। Amen. आमीन। If I am preaching, अगर मैं मुनादी कर रहा I am हूँ, giving a sermon. मैं सरमन सुना रहा हूँ, In the reward, I will not receive sermon back. तो बदले में सिर्फ मुझे सरमन भी वापस नहीं मिलेगा। Because in the kingdom of God, nobody needs to listen sermons. क्योंकि बादशाहत में सरमन तो किसी ने नहीं सुनना। Obviously, I need something else in exchange. और बदले में वहाँ पे मुझे कुछ और चीज चाहिए होगी। So I will be given something else. तो मुझे कुछ और वहाँ मिलेगा। Obviously, I am receiving revelations. और जाहिर है कि वहाँ पे मुझे मुकाशफात मिलेंगे। They will be receiving mysteries and revelations more and more deeper और ज्यादा ज्यादा गहरे मुकाशफात मुझे मिलेंगे about God. खुदा के बारे में। Amen. आमीन। Because after 1000 years, 1000 सालों के बाद there is another life story. एक और जिंदगी भी है आगे That is eternity. और वो अब्दियत है। So it's not a full stop anywhere. कहीं भी हमें फुल स्टॉप या बात रुकती नजर नहीं आती। Pay attention not only on this life, सिर्फ इसी जिंदगी पे तवज्जो नहीं है, the 1000 years, 1000 साल पे तवज्जो नहीं, but focus on after the 1000 years as well. 1000 साल के बाद भी फोकस कीजिए। It's post rapture and white throne judgment post life. यस, पोस्ट रैप्चर की जिंदगी और फिर जो इंसाफ के बाद की जिंदगी आगे है, 1000 साल बादशाह The white throne judgment. और सफेद तक की जो जजमेंट है उसके बाद की I जिंदगी, should say post white throne judgment life. और उसके बाद की जिंदगी यानी सफेद तक के बाद की, उस पर भी गौर कीजिए। So anyone who is discouraging you कोई भी जो आपकी हौसला शिकनी कर रहा है on this earth, इस जमीन के ऊपर, or leave Pastor Naveed, leave him.
Leave Pastor Naveed. कि पास्टर नवीद को छोड़ दीजिए, He is teaching you something wrong. कि वो तो आपको कुछ गलत सिखा रहा है, And leave whatever he is saying about sowing the seeds. और जो बीज बोने के बारे में वो सिखा रहा है उसको छोड़ दीजिए। That man is a demonic possessed person. वो शख्स जो ऐसा कर रहा है, कह रहा है, वो possessed है, वो शैतान के कब्जे में, Purely demonic influenced person. उसके ऊपर शैतान का असर है मुकम्मल तौर He पर। is trying to rob you people. वो आप लोगों से चुराने की कोशिश कर रहा है। In the 1000 year, 1000 साल बादशाहत में he shall suffer. आप मुसीबत में से गुजरेंगे, He shall. वो शख्स मुसीबत में से गुजरेगा। But if you लेकिन अगर you will listen and obey that one, अगर आप उसकी सुनते हैं then you will be partner with him. तो फिर आप भी उसके हिस्सेदार बन जाएंगे। I want you people मैं चाहता हूँ आप लोगों के लिए to focus on your 1000 year कि life. अपनी 1000 साल बादशाहत की जिंदगी पर गौर कीजिए। Today I close this here. यहाँ पे आज मैं रोकता हूँ इसको। We are going to receive righteousness हम रास्तबाजी को रिसीव by करेंगे, serving a righteous man, रास्तबाज की खिदमत करके, by supporting him, उसकी हमायत करके, and our works should be transferred in a legitimate way. और हमारे जो काम है वो जायज तौर पर बदल जाएंगे In Jesus' mighty name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। God bless you people of God. गॉड ब्लेस।